Assalamu alaikum students. 8th class. Today we are going to start the first chapter of your book, Human Organ System. This includes two main systems, nervous system and excretory system. The nervous system is responsible for coordination and control, and the main part which is responsible for the coordination and control is brain. Brain is a very important and delicate structure. That is why it is protected by three membranes called meninges and a bony skull, which is also called cranium. Brain is divided into three main parts: forebrain, midbrain and hindbrain. This fore and hind are derived from the English words before and behind, and they have got the same spelling and use. This diagram is almost the same which is drawn in your book, but I have used color coding here. The red color here shows forebrain, green color is for midbrain and blue color is for hindbrain. As you can see that forebrain is very much enlarged as compared to the midbrain. What is the reason? Because initially during development there were three bulges: forebrain, midbrain and hindbrain. With development, forebrain advanced in development and grew very large in size. As compared, midbrain did not develop larger in size, so it is smaller in size. Now if we look at the further parts of forebrain is further divided into cerebrum, thalamus, hypothalamus and pituitary gland. Cerebrum is the folded portion of the brain. It is 90% of the brain. It is divided into two halves: right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere. Right cerebral hemisphere controls the left side of the body and left cerebral hemisphere controls the right side of the body. These two parts communicate with each other with the help of a band which is called corpus callosum. This part of brain, cerebrum, is responsible for many functions. It is responsible for reasoning, intelligence, memory, speech, voluntary actions and sensations. Voluntary actions are all those actions which we do with the help of our thinking. हर वो काम जो हम सोच समझ के कर सकते हैं, करते हैं, वो voluntary action होते हैं. So हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स हम कंट्रोल कर रहे हैं वो एक्चुअली कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम. एंड सेंसेशंस में हमारी सेंस ऑफ hearing, sense of smell, sense of taste, sense of vision, sense of touch, इन सारों के सेंटर्स सेरिब्रम में मौजूद हैं. सो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी से जो जा रही है वो सेरिब्रम में जा रही है, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं बहैसियत इंसान वो सबको कंट्रोल कर रहा है सेरिब्रम. द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कि हमें डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम द एनिमल्स, इट इज द सेरिब्रम. सेरिब्रम के बीच में जो एक पार्ट है वो है थैलेमस. थैलेमस एक्ट्स एज अ रिले स्टेशन और इंफॉर्मेशन सेरिब्रम तक पहुंचनी और डिफरेंट हिस्सों की यहाँ से गुजरने का रास्ता जो है, ट्रैक्स होते हैं इसमें फॉर द पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन. बिलो थैलेमस there is a part called hypothalamus. Although it's a very small part, but it controls lots of actions. हमारी हंगर, हमारी थर्स्ट, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा हार्ट बीट रेट, हमारी फीलिंग्स, हमारा वाटर बैलेंस, ये सारी चीजें और भी बहुत सारे हार्मोन्स के जरिए ये बॉडी के बहुत सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है. हाइपोथैलेमस के साथ एसोसिएटेड एक स्मॉल pea sized gland which is called pituitary gland. It is a small gland but it is called the master gland. हमारी पूरी बॉडी के जितने भी हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं उन सबको पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करता है. So this is all about forebrain. Now we come towards midbrain. मिडब्रेन अगर आप देखें तो ब्रेन स्टेम की एक लाइन में ये सारे स्ट्रक्चर्स जो यहाँ मौजूद हैं, मेडुला, पॉन्स, मिडब्रेन और थैलेमस, ये मिलके कहलाते हैं ब्रेन स्टेम. ये समझे कि अगर ये ट्री की तरह एक ब्रेन है तो ये सारा स्टेम है. ब्रेन स्टेम में मौजूद है मिडब्रेन और इसका भी तकरीबन वही काम है जो थैलेमस का है. दैट इज इट इज एक्टिंग एज अ रिले स्टेशन और इन्फॉर्मेशन इसमें से गुजर रही है. जो भी इन्फॉर्मेशन सेरिब्रम से ये फोरब्रेन से बाकी हिस्सों में जाती है ब्रेन के, वो इधर से गुजरती है और बाकी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन जो ब्रेन तक पहुंचनी है वो भी इसी से गुजरती है. सो टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस. नाउ वी कम टुवर्ड्स हाइंड ब्रेन. मेन पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन इज सेरिबेलम. फोरब्रेन में सेरिब्रम है और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम है. सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द मसल कंट्रैक्शन, कोऑर्डिनेट करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को
और बैलेंस, हमारी बॉडी जो बैलेंस में होती है, चाहे हम खड़े हों, बैठे हों, लेटे हों, ऑल द टाइम आवर बॉडी इज इन बैलेंस बिकॉज ऑफ दिस सेरिबेलम। देन पॉन्स इज अ बल्ज जो कि मिड ब्रेन के नीचे है। पॉन्स का मेन काम जो है वो ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करना है, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स दोनों मिलकर ये काम करते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग सम इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक हार्ट बीट रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस आपने पढ़ा था ग्रेड 7 में, दैट इट इज अ स्क्वीजिंग मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि फूड को पुश करती है थ्रू आउट द डाइजेशन। मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे जो पार्ट है वो कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, लेकिन ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन। हम इसको नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे।